development. This meeting is being ONGC is recorded. today one of the premier companies to have invested under its corporate social responsibility. ONGC Foundation acts as the main driver of change to materialize the vision to support responsible and sustainable initiatives. In order to facilitate projects relating to corporate social responsibility of ONGC, the foundation was set up in 2014 as a trust with a vision of a sustainable world. In my over 3.5 decades with ONGC, I have witnessed a vision and a commitment to create more inclusive society. And for this, as responsible corporate citizens, we work towards ensuring equity and are inclusive in our thoughts and actions. In fact, this is demonstrated very well during the last couple of years when the world was going through the worst ever health crisis. Times were very tough for all of us on operational front too. But I am incredibly gratified and humbled by my team's willingness to stand up and help the country and its most vulnerable citizens while keeping our operations on. Considerable progress has been made, and we look forward to another year of helping India unlock its true potential through consistent community development efforts in remotest corners of our country. Through such wide-ranging activities, our approach is to make a positive difference in people's lives. While our activities span 22 states and multiple fields, we are aligned with the Government of India's vision and the concept of upholding our country's unique character and history. Access to good healthcare is everyone's right, which is why ONGC aims to promote healthcare facilities and create a positive impact by addressing issues of accessibility and affordability. Sivasagar, a tiny town in Upper Assam, is blessed with tremendous natural resources and has a rich history. However, this historic town lacked basic medical facilities. ONGC is setting up a 300-bedded multi-speciality CU Khapa hospital at Shivsagar, Assam, with the objectives of providing quality healthcare facilities to all sections of society at a very affordable cost. The hospital is providing exemplary services and has also created 60-bedded COVID facility in inflatable premises. The outbreak of COVID-19 led to uncertainty and insecurity across the globe. The ONGC responded with great urgency and remarkable flexibility, fast-tracking CSR project approvals for the timely procurement of medical supplies. During the outbreak, distribution of masks, sanitizers, PPE kits, meal and ration kits were initiated, which helped daily wage earners and frontline workers during the crisis. To immune the nation to fight with COVID, 344 cold chain equipment was supplied to various states to facilitate the vaccination drive. During the COVID 2.0 wave, 17 PSA medical oxygen generation plants, more than 2,500 oxygen concentrators, and 6,000 oxygen cylinders were provided to various government hospitals across the country for a better oxygen management system. Additionally, helpline number has been created to resolve technical issues of oxygen concentrators procured under PM CARES by ONGC. Isolation centers were built. Provision for setting up ICUs and ventilators were also provided. Catering to the educational needs of students with an uncompromising emphasis on quality education, ONGC Community School, a co-educational English medium school, was established in the remotest part of district Sitapur in Uttar Pradesh. With an excellent infrastructure to tap the fullest potential of students and enhance their learning outcomes, the school is run by a team of highly qualified and experienced teaching and non-teaching staff.
From spreading the light of knowledge to supporting India's brightest students to become the leaders of tomorrow, ONGC Merit Scholarship Scheme provides the much needed support and resources for 2,000 students every year from economically weaker backgrounds who have shown academic brilliance. ONGC started the scholarship scheme for SC/ST students and now for OBC and economically weaker general category to provide supports to students of engineering, MBBS, geoscience and MBA courses. So far, 4,907 students have received scholarship across the nation. In its endeavor to promote skill development in Jammu and Kashmir, the ONGC joined hands with the Indian Army by funding for the skill development training of youth and girls of Baramulla, resulting in gainful employment of more than 2,000 Kashmiri boys and girls. ONGC envisioned to promote handicraft projects to evolve into a cluster model or hub, which seeks to undertake the task of providing training and capacity development programs. These projects add face value to the Indian handicraft products and artisans. It aims to bring about sustainable development through people's empowerment and participation. The ONGC identified and launched 6 handicraft projects on different handicrafts across states of India. Dhokra art in Orissa, Bhotia tribe woolen weaving handicrafts in Uttarakhand, Lak handicraft in Jharkhand, handloom weaving in Assam, artisanship training in block printing and employment for people with special needs and disabilities in Karnataka, and bamboo crafts in Madhya Pradesh. With the help of some local partners, master craftsmen from various communities were empaneled to train the tribal or rural youth, ensuring the art and artisans both thrive. This initiative to revive and promote the art and handicraft projects in rural India enabled thousands of artisans to create, earn, and become a part of Atmanirbhar Bharat. Harela, an initiative by ONGC, is not only rejuvenating the Himalayan agriculture and enhancing livelihood, but also building capacity and confidence in women to lead society. In 2013, when Kedarnath flash floods and landslides caused extensive damage to the property, ONGC supported the clarion call of the Honorable Prime Minister for the redevelopment and revamping of the Kedarnath and Badrinath shrines. The foundation initiated various developmental projects to rebuild these pilgrim sites to its original grandeur. One of the biggest problems in India is the profession of manual scavenging. Although laws have been made to stop the practice, due to the lack of viable technological solution, even today, human scavengers are forced to enter and clean the manholes with their hands. But now, with Bandicoot, a manhole cleaning robot, manual scavenging is a thing of the past. ONGC has procured 12 Bandicoot robots for automatic manhole cleaning across 2 southern states of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Every year, ONGC organizes Swachhata Pakhwada from 1st July to 15th July. During this, various projects were implemented to save the planet and make environment cleaner and greener. Celebration of cleanliness includes participation of employees, hygiene experts, and thousands of youths across nation. The journey has been so enriching. From a check writing organization, we have moved on towards developing new projects, sourcing and looking at the needs of the communities in and around operational areas. How do we work with communities who are actually in need of things? And during calamities, how do we work on developing relief material, relief actions? Some of our projects which were directed towards livelihood have been designed during COVID for people who would have been affected. So we have been continuously working on those kind of models which will support people at the grassroots.
That has been our major focus and intent. घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए चेहरे को हंसाया जाए। CSR का मोटिव यही है। अथर्ववेद के 3 अध्याय में कहा गया है, शतहस्त्र समाहर सहस्त्र हस्त्र संकिर, अर्न विथ 100 हैंड्स, डोनेट विथ 1000 हैंड्स। आइए ONGC CSR डे के इस पावन अवसर पर हम सभी ONGCian अपने आप को इस बहुमूल्य सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के लिए संकल्पित करें। Taking the development space to its peak by providing excellence in the philanthropy sector through its various programs, ONGC Foundation will keep working on its vision to create a sustainable world where the deprived sections of our society are transformed and empowered to lead a quality life with dignity. Thank you, Pradarshini. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी देना चाहती हूँ। As we have seen in the video कि ONGC फाउंडेशन किस थीमेटिक पे, कौन कौन से सेक्टर पे अक्रॉस पैन इंडिया ऑलरेडी सोशल डोमेन में काम कर रहा है। इस साल सर हमने 2 फेलोशिप लॉन्च किया है। इस फेलोशिप में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर 2014 से 17 के बीच में 5000 स्कूल्स में 7000 से ज्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए थे। उस टॉयलेट का सर्वे, एस्टिमेशन, रिपेयर एंड उनका अवेयरनेस सेशन डिफरेंट कम्युनिटी और स्टेक होल्डर के साथ 3 फेजेस में करके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है थ्रू फेलोशिप मॉडल, जिसमें हमारे साथ 15 फेलोज रहेंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट्स पे लोकेटेड। एंड उनके अंदर सर हमारे साथ ऊर्जक फेलो रहेंगे, जो 200 ऊर्जक फेलो रहेंगे अक्रॉस पैन इंडिया, जो ब्लॉक लेवल पे इस सर्वे के लिए, इस एस्टिमेशन और अवेयरनेस सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे। ये सर फेलोशिप ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। हमारे साथ स्वच्छता फेलो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ऊर्जक फेलो जुड़ रहे हैं, और ये प्रोसेस करीब 8 से 9 महीने और ये फेलोशिप ऑलमोस्ट 12 मंथ्स तक चलेगा, जिसमें हमारा मोटिव ये है कि कैसे हम हेल्थ को कंसिडर करते हुए सैनिटेशन, वॉश को और स्वच्छता को कॉन्सेप्ट लोगों को समझा सके और उनको बता सके क्यों टॉयलेट जरूरी है, क्यों क्लीनलीनेस जरूरी है। इसके साथ हमारे साथ ऑलरेडी सर पार्टिसिपेंट्स की तरह जुड़े हुए हैं। दूसरा फेलोशिप है हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन, जिसमें हमारे साथ फेलो जुड़े हैं हस्तशिल्प कला के सहयोगी की तरह, जहां पर हमने ऑलरेडी आजादी के अमृत महोत्सव के लिए 15 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है, जिसमें हमने 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च किया है, जो हम वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं सर। इस वीडियो में जैसे हमने देखा कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और उनके हैंडीक्राफ्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। हम आर्टिजन्स के साथ और लोकल ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ताकि इस हैंडीक्राफ्ट को लोकल लेवल से हम उनको अपलिफ्ट कर सके, उनको हेल्प कर सके और ज्यादा इस आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जिसके साथ हमारे साथ इंटर्न्स जुड़ रहे हैं और फेलोज उनको एंकर करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कैसे उनका प्रोडक्शन, कैसे उनका मार्केटिंग, कैसे उनको हेल्प कर सके डिजाइनिंग एंड आगे चैनल क्रिएट करने के लिए। सो हमारे साथ पार्टिसिपेंट में 2 फेलोज के साथ हमारे ONGC फाउंडेशन के एम्प्लॉइज, हमारे ACO ONGC फाउंडेशन के किरण सर और अदर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइंट हैं। ये सेशंस हम एक ट्रिब्यूट की तरह कर रहे हैं सर, जिसमें हम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारे अनसंग हीरोज, जिसके तो हमें पता है कि कितने सारे लीडर्स ने क्या क्या किया है, हम उन लीडर्स के बाद भी चर्चा कर रहे हैं इतिहास के पन्ने के सेशन के थ्रू, जिसमें हम समझना चाहते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी कहानी अनकही है, और हम समझना चाहते हैं कि उनकी कहानी से हमें और क्या प्रेरणा मिल सकती है और क्या सीख मिल सकती है। सो आई रिक्वेस्ट नाउ आवर फेलो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने कुछ यूनिक स्टेट्स की अनसंग हीरो के बारे में हमें बताएं।
And one by one, we can take the session forward after listening to their state unsung heroes. So, Priyadarshini, over to you. Can we have fellows to talk about? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First, we have Pavan Kalyan from Andhra Pradesh. Yeah. So, good evening, everyone. Good evening, sir. My name is Pavan Kalyan. I'm from Andhra Pradesh. I'm working as a Swachhta Fellow as a part of ONGC Foundation Swachhta Fellowship. So, first of all, I'm very thankful that I got this opportunity to share a story about an unsung hero from my own state, Andhra Pradesh, as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, today I'm going to share a story about Uyalawada Narasimha Reddy. He's from Andhra Pradesh, Nandyala district. So the story dates back to 1800s, where the East India Company ruling was going on in India. So basically, Uyalawada Narasimha Reddy was a Palegar at that time. Palegar means they were the chief administrative officers or military governors who used to look after the welfare of people. At the same time, they act as a middleman between the kingdoms like Vijayanagara kingdoms as well as the people. So once the East India Company got into the India, they completely abolished the Palegar system that time by introducing the Rayatwari system. So to brief you all, what is Rayatwari system is, the cultivators who cultivate the crops, they used to directly pay the taxes to the East India Company without having any middlemen. So the taxes are such that even the crop fails, they need to pay the required amount of taxes to the company at any cost. If anyone fails to pay the taxes, they were severely punished. So by the time this Palegar Uyalawada Narasimha Reddy felt this is very unfair, and he used to take over the welfare activities of people, and he used to represent the people's problems to the kingdoms earlier, which are before East India Company. So he felt that if we continue this Rayatwari system under the East India Company, gradually our means of living will also be difficult for this. So he decided to start an uprising, start a rebellion against the East India Company that time. And it's even before the 1857 Sepoy Mutiny. So he was even considered as the first freedom fighter because before the Sepoy Mutiny, he started rebellion against the East India Company that time. So he formed an army of 3,000 men that time, and he chose the forest of Nalamalla, which is in the borders of Andhra and Telangana. He used that as a center to fight against the British East India Company at that time. And he even used the guerrilla warfare, which means an unconventional warfare like using the tactics like hit and run and raiding the police stations and taking the ammunition from the police and using against them. So he was even the first person that who had used the cannon, which he raided from the British East India Company, and he used against them. And with all the guerrilla warfare techniques, he somehow taken back the treasury which was looted by the East India Company back then. And he was during the time British East India Company has also announced the cash prize of to the people whoever make them aware about the whereabouts of Uyalawada Narasimha Reddy. But people were very supportive to the Uyalawada Narasimha Reddy because he is fighting for the people themselves. So no one is ready to share his whereabouts to the East India Company at that time. But Narasimha Reddy's own brother, who is very egoistic and depressed, and he even very much depressed by popularity that is gaining among masses for Uyalawada Narasimha Reddy. So he himself joined hands with the East India Company, and he leaked the whereabouts of Uyalawada Narasimha Reddy to East India Company that time. And then Narasimha Reddy was captured by the company, and in 1847, February 22nd, he was hanged to death publicly in front of 2,000 people. And his body was hanged to the fourth wall of Uyalawada for 30 years. That just because to instill fear among the people who is going to rebel next time. So East India Company rulers were that much cruel that time, but they thought of instilling fear among the masses, but that doesn't happen because Narasimha Reddy's valor and his courage was still in the hearts of people of Andhra as well as in India also. And after fortunately in 2017, the government has also recognized his greatness and released a postal stamp on him.
And in 2019, a movie was also made on him by the lead actor Chiranjeevi in Telugu film industry. And the movie was also released in other languages like Hindi, Malayalam and Tamil. And in 2021, the Kurnool domestic airport was also renamed after Veelavada Narasimha Reddy's airport. So this is the greatness of Veelavada Narasimha Reddy, and I'm personally very privileged that I got an opportunity on behalf of ONGC Foundation that I'm working in the present Kurnool district where he was born and where he fought for the people, where he died on this land. So I personally take this privilege and thank each one of you for listening so patiently. Thank you. Thank you so much, Pawan. We now have Saurav from Orissa. सभी को मेरा नमस्ते। मैं सौरभ हूँ, उड़ीसा की रहने वाला हूँ। अभी स्वच्छता फेलो के हिसाब से काम कर रहा हूँ एनजीसी के फाउंडेशन के अंदर। मेरा जो प्लेस है काम करने का वो जाजपुर है उड़ीसा का। तो मैं ये जो आजादी के अमृत महोत्सव के त्योहार और पर्व के हिसाब से जो मनाया जा रहा है अभी 75 ईयर्स का, इसमें ओएनजीसी के फाउंडेशन की तरफ से ये जो सत्र चल रहा है इसमें कुछ बोलने को मुझे जो सुযোগ मिला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी को। तो मैं उड़ीसा के एक महान राजा जिसने मुगल आक्रांतों से कैसे उड़ीसा कैसे लीड किया मुगल आक्रांतों से उनके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो उनके नाम है कपिलेंद्र देव। वो 1434 से लेकर 1467 तक उड़ीसा की राज्य के जो सिंहासन होता है किंगडम में उन्होंने राजा बने रहे। और कपिलेंद्र देव द फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय डायनेस्टी, मोर पॉपुलरली एज द सूर्यवंशम गजपति महाराज. He rose to power from a humble position, carving out an extensive empire with boundaries stretching beyond for the earlier kings' rules. He won several battles against Islamic invaders. He defeated Sultans of Bengal, Jaunpur, Malwa, Gulbarga. He helped the Belawas of Andhra Pradesh to regain their territories from Humayun Shah of the Bahmani Sultanate. Kapilendra Dev had a robust army, including an advanced elephant battalion comprising of 2 lakh elephants. Asurgarh Fort expedition led to the discovery of an advanced civilization dating back to 2500 to 3500 years. Kapilendra Dev was born to Belama and Jageshwar Raut. The Gopinathpur inscription of 1447 CE describes his birth. Kapilendra Dev initially served in the Eastern Ganga army of Bhanudev IV, who ruled from 1424 to 1435. Bhanudev IV honored with him the title of Brahmaravira. Brahmaravira was a title conferred to warriors from royal family. Madana Panji, a chronicle of Jagannath Temple of Puri, starting from 12th century, describes historical records of the king of Orissa. The chronicle depicts the coronation of Kapilendra Dev as Gajpati of the kingdom, succeeding Bhanudev IV. It mentions the coronation date of 29th June 1435 of the Georgian calendar. The king of Odisha had regarded Mahaprabhu Jagannath as the real king and themselves to be his servant. Kapilendra Dev inherited the military tradition of the Eastern Ganga. He always kept a standing army ready to counter any possible war, which has a competitive advantages when compared with other kingdoms. Saladas in Odia Mahabharat has given a detailed description of the military division of Kapilendra Deva's armies, including weaponry and musical instruments used in warfare. During the time of Kapilendra Dev, Muslim rulers were powerful in several... Saurav, I'm very sorry to interrupt. Could you just wrap it up? Yeah. Okay, ma'am. तो हमने जैसे इतिहास में बहुत सारे लोगों को पढ़ा है जिनका जिनका प्रभाव रहा हमें बचाने के लिए मुगल आक्रांत हो या फिर अंग्रेजों से। उनके हिसाब से कुछ कुछ ऐसे अनसंग हीरोज है जिनको अभी तक इतिहास के पन्ने पे स्थान नहीं मिला है। उड़ीसा की जो मैं आज जिनके बारे में बता रहा था वो भी ऐसे एक राजा है जिन्होंने नेवी से लेकर बहुत सारे जो एडवांस्ड वेपनरी होता है, युद्ध कौशल होता है, उसके बारे में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन उनको अभी तक नेशनल हिस्ट्री तो छोड़िए उड़ीसा की हिस्ट्री में भी उनको ऐसा स्थान नहीं मिलता है। तो ये हमारा
ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, Saurav. Can we have a Jayashree to talk about? Yes, ma'am. Jayashree, please. Yeah, thank you. Good evening, everyone. Thank you for giving me an opportunity to discuss about my state, unseen heroes. So, मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेशन पे वो मेरे त्रिपुरा के जो अनसन हीरो है उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। और सर, मैं जयश्री शाह फ्रॉम त्रिपुरा, मैं स्वच्छता फेलो हूँ ओएनजीसी फाउंडेशन की। तो मैं हमारे त्रिपुरा के जो अनसन हीरो श्री सचिंद्र लाल सिंह, उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ, तो सचिंद्र लाल सिंह जो 7 अगस्त 1907 में अगरतला के त्रिपुरा के अगरतला में जन्म हुआ था उनका। इसके बाद वो बहुत छोटे से उम्र में उन्होंने इंडिया के वो फ्रीडम फाइटर्स में अपना योगदान दिया। वो 1924 से अपना 1947 तक वो अपना पार्ट बहुत फ्रीडम के लिए योगदान दिया। और उसमें उनका जो सबसे महत्वपूर्ण एक योगदान था, उनमें से एक है वो चिटागांग शस्त्रागार से जो हमारा जो एल्युमिनियम था, उनमें उनका इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया था। तो उसपे उन्होंने उनके साथ उनका एक भाई भी था, वो उमेश लाल सिंह। वो भी बहुत छोटे उम्र में अपने भाई के साथ वो चिटागांग शस्त्रागार के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पहले वो भी बता दूं कि ओह सॉरी, मेरे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। हेलो, या जयश्री और ऑडिबल आप बोलते रहिए। लोकेशन की इलेक्ट्रिसिटी अभी चली गई है। आप बोलते रहिए आप बोल सकते। हाँ, तो वो उनके भाई है उमेश लाल सिंह। उन्होंने भी अपने कम आयु में वो सचिंद्र लाल सिंह के साथ अपना वो चिट्टागांग आर्मी में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। बट उस टाइम पे उनको वहाँ मतलब जब वो आर्मी में उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा वो उमेश लाल सिंह को, क्योंकि वो पकड़े गए थे। तो इसके बाद तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ वो चिटागांग आर्मी के बारे में। उसमें क्या था कि हमारे जो वहाँ पे कुछ गन थे जो लोग यूज करते थे, मतलब फ्रीडम्स के लिए वो लोग यूज करना चाहते थे। तो वहां से उन लोगों ने इस सबको वहां से वो क्या कहते हैं इसको, मतलब लाने के लिए सूरज सेन के साथ जो सूरज सेन थे उनके साथ टोटल 65 पीपल्स थे जो वहां से वो शस्त्रघाट से वो गन वगैरह सब कुछ लेके आए थे इंडिया के लिए। तो उस टाइम पे 14 लोग तो पकड़े गए। उनमें से एक है उमेश लाल सिंह और उनका भाई था सचिंद्र लाल सिंह। वो मतलब ठीक ठाक से वहां से आ गए थे। तो इसके बाद वो अभी इंडिया के त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने, पहले चीफ मिनिस्टर बने त्रिपुरा के। इसके बाद वो सचिंद्र लाल सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट नेशनल कांग्रेस के 6th नंबर पे जो मेंबर थे वो सचिंद्र लाल सिंह बने वो भी। और इसके बाद हमारे त्रिपुरा तो 1972 21 जुलाई को इंडिया के जो अपने स्वशासित राज्य के अंतर्गत हुआ। इसके पहले तो 1950 में वो रिपब्लिक भारत में अंतर्गत हुआ था। तो इसके पहले हमारे त्रिपुरा में तो महाराजा श्री वीर विक्रम किशोर माणिक्य की राज चलता था। तो वहां पे भी उन्होंने मतलब उनके साथ कुछ नहीं था जैसे कि हाँ आप ऐसे कर रहे हो, उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। तो इसके बाद उनके तो हमारे 1972 के बाद मतलब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस होने के बाद त्रिपुरा को अपना स्वशासित राज्य घोषित किया। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हमारे त्रिपुरा को लाइक एज ए
कंट्री त्रिपुरा को वो उन्होंने मतलब जैसे हाँ कि यहाँ वहाँ पे कुछ जैसे जैसे ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ फंड थे, उनमें उन्होंने हेल्प किया। उसके बाद वो सचिंद्र लाल सिंह हम जो थे वो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बहुत इंस्पायर्ड थे, उन दोनों से बहुत इंस्पायर्ड थे सचिंद्र लाल सिंह। इसके बाद बहुत सारा तो इसके बाद उन्होंने अपना त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रोल में बहुत अच्छा काम किया था। वो उनका चीफ मिनिस्टर के रोल मतलब टाइम था, मतलब वो जो अपने मिनिस्टर थे हमारे त्रिपुरा के, उसका टाइम था 1 जुलाई से 1963 टू नवंबर 1971। स्टेट हाँ वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा थे। तो उसके बाद से वैसे तो उनका बहुत ही ऐसे थे, मगर उनका जो रोल मेन रोल था वो चिटागांग अलमड़ी में था और इसके अलमोड़ी में था, और उनके भाई का भी बहुत बड़ा योगदान था उन उसमें। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम एंड सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर माय state's unsung heroes of Sachindra Lal Singh. हम आपको भी सीन नहीं कर पा रहे। सर एक्चुअली मेरे लोकेशन की इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अनसंग हीरो जैसा आपका भी अभी अनसंग हो गया ना। हाँ सर। Thank you, Jayashree. We can move for the next person. We have another fellow with us, sir. Ankur. Yes, ma'am. सभी को प्रणाम। मेरा नाम अंकुर सिंह है। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता का रहने वाला हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं एक अनसंग हीरो के बारे में अपने स्टेट से बता सकूं आप सभी को। मैं एक शिल्प विद्या की उड़ान के सहयोगी का फेलो हूँ और ओएनजीसी फाउंडेशन में पिछले 4 महीने से एज अ फेलो काम कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक अनसंग हीरो के बारे में जो कि बहुत ही कम उम्र में अपनी लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट शुरू की थी। उनका नाम है हेलेन लेप्चा। हेलेन लेप्चा सिक्किम से बिलोंग करती थी। वो अपने माता पिता की तीसरी बेटी थी। 1902 के साल में वो पैदा हुई थी और सिक्किम से वो आगे बढ़ करके उनके पेरेंट्स जो हैं वो दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में के टी स्टेट्स में उन्होंने अपनी पनाह ली थी। तो टी स्टेट्स में उस समय में बहुत ट्राइबल्स थे जो लेबरर्स थे, जिनमें बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, बहुत ज़्यादा उनको दर्द में रखा जाता था और वो बहुत कठिनाइयाँ फेस करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कम उम्र में 1917 में जब उनका उम्र सिर्फ 15 साल का था, हेलेन लेप्चा का, उन्होंने ये सब ट्राइबल लेबरर्स का दर्द देखा और वो उनके लिए कुछ करने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की। उस समय में बहुत सारे बंगाल से बहुत सारे लोग आते थे और स्पीच देते थे आज़ादी के बारे में। तो उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई और आगे बढ़ी और चरखा और खद्दर मूवमेंट को लेकर के वो आगे बढ़ी 1917 में। जब वो धीरे धीरे करके कलकत्ता की तरफ आगे बढ़ी अपने काम को लेकर के, तब वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो पोती थी उनके साथ में मिल करके चरखा और खादी का जो मूवमेंट था उसमें बहुत भागीदारी रही उनकी। और जब मुजफ्फरपुर बिहार में उन चीज़ का एग्जीबिशन हुआ तो वो कलकत्ता को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ी। तभी 1920 में बिहार में बहुत बड़ा एक फ्लड आया था जिससे बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। उस चीज को देखते हुए जब महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे तो महात्मा गांधी ने देखा कि हेलेन लेप्चा की का जो काम है और जो जील है उनका, जिस चीज से वो आगे बढ़ रही हैं और लोग उनको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनको वो चीजें बहुत अच्छी लगी और वो उनको कहे कि हेलेन लेप्चा को कहे कि आप साबरमती आश्रम आइए। जब वो साबरमती आश्रम पहुंची तो वहां पे महात्मा गांधी जी ने बोला कि आपका काम बहुत ही बढ़िया है और हम आपको एक नया नाम देना चाहते हैं, क्योंकि हेलेन नाम जो है वो एक फॉरेनर सा नाम है, इसलिए महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी का नाम दिया था। एंड जब उनको सावित्री देवी का नाम मिला तो वो वापस आए और कलकत्ता के मोहम्मद अली पार्क में
गांधी जी के साथ मिलकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। उस जगह पे जब झारिया कोलफील्ड्स में 10,000 से ज्यादा माइन लेबरर्स हुआ करते थे, जिनको बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में दर्द सहने को मिला था और एक्सप्लॉयटेशन होती थी उनकी, सारे ही ट्राइबल लेबर से, उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई और नारे लगाए और एक्टिविज्म किया। आगे चलते हुए वो 1920-21 में जब 1921 और 22 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के वो आगे बढ़े और सिक्किम की तरफ, दार्जिलिंग की तरफ, दार्जिलिंग हिल्स की तरफ वापस गए, कुर्सियोंग की तरफ, वहां पे जो भी टी स्टेट फार्मर्स थे उनसे उनसे बहुत ही ज्यादा जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको डर लगता था, क्योंकि वहां पे बहुत गोरखा सोल्जर्स जो थे वो बहुत ही ताकतवर थे और गोरखा सोल्जर्स के साथ मिल करके हेलेन लेप्चा जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने वहां पे ये लगा दिया कैंपेन, उनको उनका कैंपेन रोक दिया और वहां पे बहुत सारी चीजें की। पर हेलेन दीदी ने तब भी आगे बढ़ते हुए 1922 में ये कैंपेन जारी रखा। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जेल से निकल करके उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया। जब वो हाउस अरेस्ट पे थी उसी समय में सुभाष चंद्र बोस भी कुर्सियोंग में हाउस अरेस्ट पे थे। तो ऐसा माना जाता है कि हेलेन लेप्चा ने सुभाष चंद्र बोस को उस समय में मदद किया था अपने हस्बैंड के बेकरी के थ्रू। वो ब्रेड में उनकी सुभाष चंद्र बोस के लिए चीजें छुपा करके भेजते थे ताकि वो अपना हुलिया बदल करके वहां से भाग सकें और वहां से बच करके निकल सकें और देश के लिए लड़ सकें। तो ऐसा माना जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे काबुल की तरफ, तब जो भी उनका हुलिया था उनको पठान का जो ड्रेस था या फिर उनकी जो मूछें थी बढ़ाई हुई, वो सब चीज ब्रेड में छुपा करके उनके हस्बैंड के बेकरी के थ्रू हेलेन लेप्चा ने पहुंचाई थी सुभाष चंद्र बोस की तरफ और वो मदद की थी सुभाष चंद्र बोस को उस जगह से, उस हाउस अरेस्ट से निकलने के लिए और भागने के लिए। इसके लिए उनको फर्स्ट वुमेन कमिश्नर बनाया गया था कुर्सियोंग म्युनिसिपैलिटी का और हेलेन जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में भी और उन्हें शेरपा एसोसिएशन में, नगर कांग्रेस, अंजुमन इस्लामिया और लेप्चा एसोसिएशन में का हेड बनाया गया था और उन्होंने मंडल ऑफ कुर्सियोंग में भी पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इंदिरा गांधी ने उन्हें साइला दीदी का रेफरेंस दिया था। साइला दीदी मतलब जो फैमिली में तीसरे बच्चे होते हैं उनको साइला बोला जाता है, तो साइला दीदी का नाम दिया गया था। तो अभी भी उनका नाम हिस्ट्री की किताबों से मिसिंग है, तो मैं कहना चाहता हूँ उनके बारे में और आज उन्हें डॉटर ऑफ द सॉइल के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। थैंक यू अंकुर। सर जैसे हमने देखा, हमने 4 लोगों को एज अ फेलो जो डिफरेंट स्टेट से हैं उनको, उनके स्टेट के अनसंग हीरोज को सुना और समझा कि कैसे क्या स्ट्रगल के साथ वो आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं ना कहीं नजरअंदाज है या फिर नहीं है। सो आगे सेशन को बढ़ाते हुए मैं प्रियांक से चाहूंगी कि वो आए स्टेज पे और श्रीनिवास जी को इंट्रोडक्शन के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ा सके। प्रियांक। नमस्ते सभी को। मैं थोड़ा सा, मेरे साथ भी लाइट की अभी समस्या है तो मैं अपना ऑफ ही रख रहा हूँ वीडियो। आप सभी को नमस्ते। हमारे मध्य में यमुना घाट पर तो नहीं है छठ पूजा के लिए, कहीं वहां से कर रहे होंगे यमुना घाट पर केजरीवाल जी के सानिध्य में। बिल्कुल छठ की अभी मार्केटिंग के लिए एक्चुअली आया हुआ था, आज खरना है तो फिर मैं उधर से मार्केट से निकल करके कहीं पार्क में शांत जगह पे आया हूँ। तो आप श्रीनिवास जी हैं, आप मूलतः हरियाणा के हिसार जिले से हैं। आप भारतीय किसान संघ के पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र कोलकाता है। आप पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। आप एबीवीपी से वर्ष 1992 से संपर्क में हैं एवं राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर वर्ष 1996 में आपने अपना सारा जीवन देश के नाम देने के लिए ऐसा प्रण लेकर पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आप पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आपकी शिक्षा पत्रकारिता में मास्टर्स तक हुई है।
वर्ष 2019 में अमेरिका सरकार के निमंत्रण पर आप इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम IVLP के तहत यूएस के विभिन्न विश्वविद्यालयों व सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ विविधता विषय पर व्याख्यान भी दिए हुए हैं। आपका ONGC फाउंडेशन के इस सत्र में स्वागत है। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद प्रियांक। सर, आपको वेलकम करते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें आज के अनसंग हीरो हमारे चेपिकर ब्रदर्स के बारे में, उनके जिंदगी के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में ज्ञात कराएं सर। सर आपसे रिक्वेस्ट। ONGC फाउंडेशन के द्वारा इतिहास के पन्ने इस शीर्षक से हमारे देश के उन तमाम अनसंग हीरोज को याद करने का ये अनूठा प्रयोग, इसके लिए सर्वप्रथम आदरणीय किरण जी और पूरी ONGC टीम के जो आयोजक है सबको हृदय से आभार। विशेष तौर पर सुनील भट्ट जी को, जिन्होंने मुझे संपर्क करके बहुत कम समय में, शायद परसों ही हमारी बात हुई, और प्रियदर्शनी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो लिस्ट भेजा था उसको तो मैं नहीं कर सकता था इतना जल्दी, लेकिन जो मैंने सजेशन दिया चापेकर बंधुओं के बारे में उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम पूरी ONGC फाउंडेशन टीम को हृदय से आभार। हम सब लोग अभी जिस समय में हैं, ऐसे बिहार में सूर्य उपासना और छठ मैया का महापर्व और उसका आज दूसरा दिन खरना है, तो इसके लिए सभी जुड़े हुए ONGC परिवार के सभी लोगों को हृदय से आभार। भारत का उत्सव प्रधान देश है और इसलिए अभी लगातार हम अगर बंगाल में बात करें तो दुर्गा पूजा, काली पूजा के उत्सव से का खुमार अभी भी समाज जीवन पर है। देश भर में दीपावली के 5 दिन का एक बहुत महापर्व हमने अभी भी मनाया है और ये हमारे सारे पर्व और त्योहार ये वास्तव में भारत की सांस्कृतिक जो धारा है उसकी आत्मा है। ये सहज रूप से प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर के अंधकार को समाप्त करते हुए उसको प्रकृति के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ और एक संवेदनाओं से परिपूर्ण मानव बनाने का एक हमारा बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए जितने भी प्रांतों के सभी लोग यहाँ जुड़े हैं और उन सबको उन प्रांतों के स्थानीय लोक पर्व के साथ इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मेरे से पूर्व में 4 मेरे मित्रों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से वहाँ की माटी के जो ऐसे अनसंग हीरोज थे उनके बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबके सामने रखी। उनको समय शायद कम मिला और भी बातें कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी जानकारी आज हमको उनके द्वारा मिली। एक बार पुनः मैं अपनी बात ONGC फाउंडेशन को और जो एक देशव्यापी और सेवा के सभी आयाम, चाहे वो किसी को प्रत्यक्ष सहयोग की बात हो या समाज जीवन के जितने भी सेवा कार्य आज के दिन हम सोचते हैं, उन सभी विषयों में एक अग्रणी भूमिका कोरोना से लेकर और आज जितना मैं वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, एक बहुत ही देश का ऐसा अनूठा और अग्रणी संगठन ONGC फाउंडेशन, उसके सभी जितने वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिन लोगों ने एक कंसेप्ट के नाते शुरू किया और आज इतना बड़ा ये फाउंडेशन बना है, इसके सभी मित्रों को भी हृदय से आभार। आज का जो विषय है इतिहास के पन्ने, मैं सर्वप्रथम आज जिन क्रांतिकारियों को याद करना चाहता हूँ उनके निमित्त से सभी क्रांतिकारियों के लिए 2 शब्द कहता हूँ। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, आंच तेज करने को अपनी नाम तुम्हारा लेगा। हम बार बार अपने आप को देश से जोड़ने के लिए ऐसे क्रांतिकारियों के नाम लेकर अपने आप के अंदर की जो राष्ट्रभक्ति है उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं। भारत की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव से हम देश के 100 वर्ष की स्वाधीनता के अमृत काल की ओर प्रवेश कर चुके हैं। आज हम अपनी भारत की स्वाधीनता के जब 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिन सपनों को लेकर 1000-1200 वर्षों के संघर्ष का कालखंड
हमारे अलग अलग प्रकार के क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देकर जिस माँ भारती की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, आज मुझे लगता है कि इस अमृत महोत्सव के समय में उनकी आकांक्षाओं का, उनके बलिदानों के अनुरूप वैसा भारत बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। और आज एक वैश्विक जगत में पुनः भारत के राष्ट्र नाम के तत्वों के सिंबल्स पुनः प्रस्थापित हो रहे हैं। आज भारत पुनः अपने उन्हीं सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के प्रतीक चिन्हों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम सब जो करोड़ों भारतीय है उनको भी आनंद है, और जिनके कारण से यह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे ऐसे सभी क्रांतिकारियों को भी इस राष्ट्र की एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आज सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और आज भारत के युवाओं के पास आइडियाज भी हैं, इंस्पिरेशंस भी है, और उसको जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो बहुत कुछ करना चाहता है। इसकी एक बानगी आप सब के माध्यम से मैं भी ओएनजीसी फाउंडेशन में भी देख रहा हूँ, क्योंकि चाहे आप स्वयं हैं या प्रियदर्शनी हैं या हमारे 4 जिन लोगों ने अनसंग हीरोज की बात की, सभी यंग माइंड्स नए आइडियाज के साथ आज इस इतिहास के पन्ने के कार्यक्रम में हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। ये बदलते हुए भारत के एक चित्र है। भारत की स्वाधीनता में विशेष तौर पर अगर हम बात करें अंग्रेज के कालखंड की, वैसे तो पूरा बहुत बड़ा इतिहास है, उसमें कितने सारे पन्ने हैं जो आज हमारे सामने आने बाकी है, लेकिन अगर हम ऐसे अनसंग हीरोज की बात करें तो उसमें बहुत नाम हम लोग जानते हैं, कुछ लोगों के नाम जानते हैं लेकिन उनका इतिहास शायद नहीं जानते। ऐसे ही आज के इस अपने चर्चा सत्र में चाफेकर बंधु, उनके बारे में हम बात करेंगे। वास्तव में 3 भाइयों के बलिदान की अमर गाथा है, जिसको एक मैं कह सकता हूं कि इतिहास के सही लेखन के अभाव में उनके इस बलिदान की अमर गाथा को कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। वास्तव में 3 नहीं, उनके साथ उनका एक चौथा मित्र भी इस बलिदान की गाथा में है, और उनका भी बलिदान उनके साथ हुआ है। तो आज हम 3 बंधुओं की बात करेंगे। भारत की स्वाधीनता का एक बहुत बड़ा प्रयास 1857 की महासमर में हुआ, जिसको वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता का राष्ट्रीय महासमर कहा। हालांकि इस देश के वर्तमान के वामपंथ के इतिहासकार हों या इस देश में अनेक वर्षों तक केंद्र की सरकार और शिक्षा विभाग रहे हों या अंग्रेज हो, उन्होंने 1857 की क्रांति को गदर लिखा, सैनिक विद्रोह लिखा, लेकिन वीर सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता समर लिखा। और अपने ओएनजीसी की टीम में जुड़े हुए सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, शायद ये वीर सावरकर जी ही थे जिनकी पहला इतिहास ऐसा है कि जो पुस्तक प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित हो गई। तो आज उस विषय पर मैं कम जा रहा हूँ। तो ऐसे 1857 के बाद लगभग 40 वर्षों का एक कालखंड भारत की स्वाधीनता में ऐसा आया जब इस प्रकार का कोई शस्त्र विद्रोह देखने को नहीं मिलता। 1857 की क्रांति के बाद 25 जून 1869 यानी 69 में और पुणे के एक चिंचवाड़ नाम के गांव में दादा विनायक और पिता हरि विनायक और माता द्वारका हरि के पेट में एक कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनको विनायक हरि के नाम से या विनायक हरि चाफेकर के नाम से जाना गया। उन्हीं के दूसरे छोटे भाई कृष्ण हरि विनायक, जिनका जन्म 1873 में हुआ, 1873 में हुआ, और उन्हीं के सबसे छोटे भाई, तीसरे भाई यानी वासुदेव हरि विनायक, उनका जन्म 1879 में। तो ऐसे 3 भाइयों का जन्म ये भारत के 1857 की क्रांति के 10 साल और लगभग 20 साल के अंतराल में हुआ। और इनका जीवन जो है वो लगभग, अगर हम बात करेंगे आगे चलकर, मैं विषय रखूंगा तो समझ में आएगा। दामोदर हरि का जब बलिदान हुआ तो उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। बालकृष्ण हरि को जब बलिदान हुआ तो उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। और वासुदेव हरि का जब बलिदान हुआ, जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, उस समय उनकी आयु मात्र 20 साल थी। आज कभी कभी हम कहते हैं कि 18-20 साल का नौजवान शायद पिज्जा और बर्गर की चॉइस करता है, उस समय में 20 साल के नौजवान ने फांसी के फंदे की चॉइस। ऐसी एक बहुत बड़ी वीर गाथा हमारे सामने चाफेकर बंधुओं के रूप में है, लेकिन दुर्भाग्य से
इतिहास में जितना स्थान मिलना चाहिए था उतना स्थान इस वीर गाथा को नहीं मिला। 1897 यानी 1897 के बाद ये घटना हुई, 1898 और 1899, इन 2 वर्षों में 4 इस देश के महान क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वो चारों लोग, ये 3 भाई और इनका चौथा मित्र जिसका नाम महादेव रानाडे है। ऐसे महादेव रानाडे और 3 बंधु, आप कल्पना करके देखिए मित्रों, एक परिवार के 3 भाइयों को भारत की स्वाधीनता के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजादी के बाद भी दामोदर की मिसेज जिस देश में जीवित थी, लेकिन शायद इस देश का ये दुर्भाग्य है कि उस परिवार को कभी भी भारत की स्वाधीनता के बाद समाज के सामने नहीं लाया। और ऐसी एक देखिए विपत्ति, देखिए समाज पर कैसी आती है। उनके माताजी और पिताजी का देहांत उसी कालखंड में हुआ, और जब तीनों भाइयों को फांसी हो गई, उस परिवार में केवल 3 विधवा महिलाएं बची। उन्होंने कैसे उस समय को व्यतीत किया होगा, कैसे इस दारुण दुख को झेला होगा, और शायद उन्होंने कहीं आह भी नहीं भरी होगी कि हमारे पति तो देश के लिए बलिदान हो गए, हमारे लिए देश क्या करेगा, ऐसा शायद कहीं विचार नहीं आया। भगिनी निवेदिता भी उस समय इस पूरे विषय के साथ जुड़ी, उन्होंने सारी उसके लिए आवाज भी उठाई, तीनों के केस के लिए भी। लोकमान्य तिलक ने भी उनकी आवाज को उठाया, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको माफी नहीं मिली और तीनों को अंततोगत्वा बलिदान होना पड़ा। अब विषय आता है कि चापेकर बंधुओं ने ऐसा क्या किया था, कौन थे वो। बैकग्राउंड मैंने बताया, एक बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ, और उस समय में कितने धनाढ्य होंगे कि वो 3 गाड़ियां लेकर चिंचोड़ से यानी चिंचवाड़, पुणे से लेकर और काशी जी की यात्रा करने आए। कुल मिलाकर 29 लोगों का परिवार यात्रा करने के लिए आया। और बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि एक समय ऐसा भी आ गया कि उनको कीर्तन करके परिवार का गुजारा करना पड़ता था। तो ऐसे एक समय वो कीर्तन में भी लगे। तो ये कहानी ऐसे उन चापेकर बंधुओं की है जिन्होंने लगभग भारत के 1857 की क्रांति के बाद 40 सालों के बाद फिर से पहली बार भारत के स्वाधीनता के इतिहास में सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात किया। यानी एक ऐसा युग जिसको हम कह सकते हैं कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के शिकागो के भाषण के बाद, और ये इस प्रकार का एक नया परिवर्तन भारत में हुआ। हम सब लोगों को मालूम है कि वो जो इरा था, उस समय पूरी दुनिया में प्लेग का एक बहुत बड़ा महामारी आई, जिसको उस समय ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना गया। और लगभग बंगाल के एक मेरे मित्र है, उनको मालूम होगा कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस समय इस प्लेग की महामारी में भारत में कालग्रसित हुए। ऐसा कहा जाता था कि भरा पूरा परिवार है और उसमें अगर प्लेग घुस गया तो पूरा का पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और बचने वाला नहीं। इस प्रकार का एक प्लेग का बहुत बड़ा आघात पूरे भारत ने उस समय में देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। उस समय भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को Yes, ma'am. So, Priyadarshini, I would request you to kindly mute all. Yes, ma'am. सारे पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना म्यूट कर ले माइक को। या थैंक यू प्रियदर्शनी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज सर कंटिन्यू। लगता है मुझे कहीं यही क्रांति हो गई हमारे चैनल। ठीक है, तो इस कालखंड में जब प्लेग की महामारी आई तो हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि चापेकर बंधुओं ने क्या किया और उनको क्यों मैंने सशस्त्र क्रांति का एक तरह से पहले क्रांतिकारी यानी 40 साल के बाद फिर से भारत की उस क्रांति का जनक मैं कह रहा हूँ। उस समय प्लेग नाम का जो एक महामारी भारत में आई और उसमें पूरा बंगाल हो, पूरा भारत यानी पूरा भारत का महाराष्ट्र का हिस्सा हो, यानी पूरा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस प्लेग की महामारी से ग्रसित हुआ। और 1897 में ये जब प्लेग आया तो उसके बाद 8 मार्च 1897 को प्लेग को नियंत्रण करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भारतीय सिविलियन सर्विस के WC रेन नाम के एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और इन्होंने उस समय उस प्लेग को नियंत्रण करने के बजाय भारत के लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और देखते देखते जिस प्रकार से वो प्लेग को नियंत्रण करना था, लोगों को राहत देनी थी, उसके बजाय
और महिला और पुरुषों को लगभग निर्वस्त्र करके सड़कों पर खड़ा करना। जो पुलिस जब लोगों के घरों में ऑपरेशन करती थी तो वृद्ध और बीमार लोगों को जानबूझ करके और इस प्रकार से ट्रीटमेंट करके और राहत शिविरों में भेज देना, और घरों के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार करना, मंदिर है तो मंदिर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ करना, लूटपाट करना। यानी पूरे पुणे में इस प्रकार की एक अराजकता, इस रेन नाम के व्यक्ति जो एक बहुत ही अहंकारी अधिकारी थे, सक्षम अधिकारी थे लेकिन बहुत अहंकारी अधिकारी थे, उसके और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ऐसा एक व्यवहार उस समय के पूरे पुणे के और महाराष्ट्र के लोगों के साथ हुआ। लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कुछ नहीं कर सकते थे। एक आक्रोश, जन आक्रोश बन गया। लोगों ने शिकायत की, लेकिन रेन ने कभी भी अपने पुलिस कर्मचारियों को या अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से नहीं रोका। तो अंततः एक निष्कर्ष ये आया कि सारी घटना को जानबूझ करके रेन नाम का जो अधिकारी है, WC रेन, ये जानबूझ करके उसको प्रश्रय दे रहा है और उसके शेल्टर में ही इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। तो लोगों को प्लेग से मरने से ज्यादा कष्ट इस प्रकार के अंग्रेज की सरकार का जो तानाशाही हुआ, जो लोगों के साथ अपमान हुआ, जो लोगों के साथ जिस प्रकार का महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई, उससे अधिक लोग प्लेग से मरने से भी ज्यादा आहत लोग उससे हुए। उसी समय दो और घटनाएं हुई। एक घटना हुई कि मुंबई में बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा की डिमांड आई कि वो परीक्षा की डेट आगे की जाए, क्योंकि प्लेग के कारण से और लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं, किसी भी प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार ने उसको रिफ्यूज कर दिया। दूसरा, उसी समय में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का जो राज सिंहासन का जो एक शताब्दी वर्ष था, उसका एक बहुत बड़ा आयोजन और ये मनाने का निर्णय भी उस समय अंग्रेज ने किया। और वो जब सब चल रहा था तो भारत के लोग, एक और हम प्लेग से मर रहे हैं, पूरा समाज इस कगार पर आ गया है और उनके साथ ये सब व्यवहार हो रहा है। दूसरी ओर इस प्रकार से ये इंग्लैंड की महारानी के राज्यरोहण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे उसने एक तरह से भारत के जो उस समय के नौजवान थे, या विशेष तौर पर दामोदर, जिनके मन में हमेशा एक बात रहती थी कि अंग्रेज भारत में आकर के हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर भी आघात कर रहे, और ये सब लोग मिलकर के हमारे देश को किस प्रकार से, हमारी भारत के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसे गुस्सा भी था। इसको लेकर के तीनों भाइयों ने एक योजना बनाई, विशेष तौर पर बालकृष्ण और दामोदर ने योजना बनाई, और वो मुंबई में गए और मुंबई में जाकर के उन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो स्टेचू था उसको कालिख खोद दिया, और वहां एक कई प्रकार के पत्र पूरे संपूर्ण मुंबई में बांटे गए और सबसे आह्वान किया गया कि इस महारानी का जो सेलिब्रेशन है इसको बायकॉट किया जाए। और बहुत कुछ इस प्रकार का एक बड़ा बवंडर हो गया और पूरा अंग्रेज शासन के एक तरह से मतलब हड़कंप जिसको कह सकते हैं, ऐसा मचा। और ये दोनों भाई ये सब काम करते हुए, इनका पूरा जो टीम थी वो सब टीम वहां से और वापस पुणे आ गई। लेकिन इस सारे घटनाक्रम ने अंग्रेज सरकार को एक बार फिर से चौकन्ना कर दिया कि भारत में जो 1857 में जिस क्रांति का दमन हमने किया था, एक बार फिर से उसी प्रकार की घटनाएं फिर से प्रारंभ हो गई। तो ये सब मुंबई में हुआ। उसके बाद केवल यहीं तक विषय नहीं रुका, तो रेन नाम के अधिकारी ने तय किया कि हम पुणे में भी इस प्रकार से ये कार्यक्रम हम करेंगे और महारानी के राज्यरोहण को सेलिब्रेशन हम करेंगे। तो ऐसे पुणे में भी एक कार्यक्रम रखा गया। तो जब ये पुणे का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा गया तो फिर से इन सब लोगों के मन में आया कि हम इनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, और पूरे पुणे में भारतीय लोगों के अपमान का जिम्मेदार अगर कोई है तो ये रेन है, और इसलिए हम इसको ही ठिकाने लगाएंगे। इस प्रकार का विचार हो, और ऐसा विचार करते हुए एक बहुत सुनियोजित तरीके से इन तीनों भाइयों ने और इनके साथ इनके मित्र थे, इन्होंने एक समूह भी बनाया। उस समूह के माध्यम से उन सबको समाप्त करना, रेन को समाप्त करने का एक बहुत सुनियोजित प्लानिंग किया गया, और कई दिनों तक लगातार रेन नाम का जो ऑफिसर था उसकी बग्गी चलती थी, उसको रेकी किया गया, उसके हाव भाव देखे गए, उसका साथ कौन देता है, कौन साथ बैठता है, ऐसे सभी प्रकार की उनकी रेकी करने के बाद जिस दिन समारोह था, उस समारोह को विशेष तौर पर ये तय किया गया कि आज के दिन जब रेन यहाँ आएगा तो उसको मारा जाए। इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर के प्लानिंग किया, और उस समय का वहाँ का जो स्थान था जिसको आजकल अलग नाम से जाना जाता है, उस समय उस रोड का नाम अलग था। अभी सेनापति बापट मार्ग उसको अभी जानते हैं। आज के समय में पुणे में अगर आप जाएंगे तो सेनापति बापट मार्ग है, और जहाँ रेन को मारा गया था वहाँ दामोदर चापेकर का एक स्टेचू भी आज वहाँ लगा हुआ है। उस स्थान को तय किया गया। वहाँ एक बड़ी पीले रंग की बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के कॉर्नर को
जहां से बग्गी आकर के टर्न करती है उसको वहां पर साइट के नाते से सिलेक्ट किया गया और सभी लोग उत्सव में शामिल हुए और सब प्रकार से एक योजना की गई। योजना कितनी बढ़िया थी कि उसमें वेपन्स अलग अलग प्रकार के रखे गए, लोगों को नियत किया गया, नियुक्त करने के बाद, और अल्टरनेटिव भी था, यानी जो पिस्टल थी उसकी व्यवस्था भी थी और भी व्यवस्था थी, और लास्ट में एक कुल्हाड़ी का भी प्रबंध रखा गया था कि अगर सब प्रकार से कुछ भी फेल हो जाता है तो अंतिम कुल्हाड़ी के वार से रेंड को छोड़ना नहीं। यानी कुल मिलाकर विषय यह था कि किसी भी कीमत पर इसको मारना है। और उसका एक कोडवर्ड रखा गया कि जब रेंड अपने वहां से आएगा तो जिस व्यक्ति को वहां से नियत किया गया, गोंडिया आयलारे ऐसे करके कोडवर्ड उस समय तय किया गया कि जैसे ही वो साथ आने वाले व्यक्ति ये बोलेगा उस समय जिसको अटैक करना है वह अपना काम करेगा और वहां से फिर सब लोग गायब हो जाएंगे। तो ऐसा उस समारोह को जो उत्सव हुआ तो उसमें सब लोग आए और ये भी लोग वहां रहे। लगभग रात्रि को 9:30 बजे जब ये महारानी विक्टोरिया का जो सेलिब्रेशन था वो समाप्त हुआ, सभी लोग वापिस जाने लगे। तो रेंड भी अपनी बग्गी में बैठकर जब वापिस गए और जैसे वो चले तो पीछे से जिस व्यक्ति को नियत किया गया था उसने आवाज लगाई, गोंडिया आयलारे, और जो बालकृष्ण हरि थे उन्होंने तुरंत बग्गी पर झपट्टा मार के अटैक किया। लेकिन वो जिस बग्गी में चढ़े वो एक्चुअल में रेंड नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट एसर्ट थे और वो पहली गोली में ही वहां ढेर हो गए। जब तक ये सब घटनाक्रम हुआ था तो दामोदर ने इस बात को ताड़ लिया कि गलती हो गई है, टारगेट चूक गया है और बालकृष्ण ने रेंड को नहीं एसर्ट को मार दिया है। तो तुरंत उन्होंने भी वो दौड़ करके रेंड की बग्गी में चढ़े और उन्होंने फायर किया। हालांकि मौके पर रेंड नहीं मरा, लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद रेंड की भी मृत्यु हो गई। यानी एक प्रकार से जो उद्देश्य तय किया गया था वो सफल हो गया और ये सब लोग वहां से गायब हो गए। उसके बाद में अंग्रेज अधिकारी ने इस सारे घटनाक्रम के बाद पूरा एक बहुत बड़ा अत्याचार किया और उसको लोकमान्य तिलक ने भी उसका विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने उस पूरी घटना का विरोध किया। लेकिन अंग्रेज सरकार तिलमिला गई, पूरी तरह से हिल गई और उसके बाद एक व्यापक हिंसाचार और टॉर्चर का दौर शुरू हुआ। इनके सभी परिवारों को जहां जहां से पता लगा, 2 लोगों ने मुखबरी किया था, उन 2 द्रविड़ बंधुओं को सरकार ने 20,000 रुपए के इनाम दे करके जेल से तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव के गतिविधियों के बारे में बताया और अंततोगत्वा एक समय ऐसा आया जब दामोदर को गिरफ्तार कर लिया गया और जब दामोदर गिरफ्तार हो गए तो उनके ऊपर मुकदमा चला और एक लगभग 13 माह की अवधि वो ऐसी थी जिसमें पूरे चापेकर परिवार पर इतने भयंकर अत्याचार अंग्रेजों ने किए, उनके रिश्तेदारों पर, उनके घर पर, उनके समाज के सब लोगों पर अत्याचार किए, जिसके कारण से बाद में बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि को भी सरेंडर करना पड़ा और सब लोगों को सब प्रकार की यातनाएं हुई। तो अंततोगत्वा जब ये सारा विषय हम देखते हैं तो एक 2-3 बातें इसमें से ध्यान में आती है। इतना बड़ा एक घटनाक्रम भारत की स्वाधीनता आंदोलन में चापेकर बंधुओं ने किया और इतने सारे घटनाक्रम को, यानी इस घटनाक्रम को अगर मैं कहूंगा तो तिलक को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप उस समय के अगर दुनिया के अखबार देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि उस समय इस पूरी घटना को दुनिया भर के सभी प्रमुख अखबारों में स्थान मिला। और जब ये सारी घटनाएं हुई तो 4 अक्टूबर 1897 को न्यूयॉर्क टाइम्स में इसकी पूरी एक बहुत विस्तृत खबर छपी थी कि चापेकर बंधुओं ने कैसे और रेंड को मारा है और उसको कैसे ये सब घटनाएं हुई, यानी पूरी दुनिया में ये घटना छपी। लेकिन प्रश्न खड़ा क्या होता है कि भारत के स्वाधीनता के आंदोलन में या आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जितना बड़ा एक घटनाक्रम होता है, क्योंकि उसके बाद जो एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ संपूर्ण महाराष्ट्र में और पूरे देश में, यानी यहाँ तक हुआ कि चापेकर बंधुओं को जब फांसी देने का निर्णय 13 माह के अंदर अंदर कर लिया गया, सभी प्रकार के षड्यंत्र अंग्रेज ने किए और कानूनी प्रक्रियाओं को करते हुए 13 माह के अंदर तीनों भाइयों को लगभग फांसी देने का निर्णय हो गया, मुकदमा चला, सब बातें हुई। इतना बड़ा एक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे अंग्रेज सरकार को हिला दिया, जिसने पूरे भारत की क्रांति को फिर से एक नए सूत्रपात में लाया। और मुझे लगता है कि उसी समय जो बाद के जो क्रांतिकारी है, भगत सिंह से लेकर के सब लोग, शायद इस पूरी घटना ने उन सब लोगों को भी प्रेरित किया होगा, पूरे देश को आंदोलित किया होगा
लेकिन आज जब हम भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष में खड़े हैं, इतिहास की किसी भी पुस्तक में, देश के किसी भी पाठ्यक्रम में, देश के किसी भी विश्वविद्यालय की चेयर में कहीं पर भी इस देश का इतना बड़ा बलिदान, यानी जिसको भगिनी निवेदिता ने कहा था कि एक माँ की कोख उसी प्रकार से सुनी हो गई जिस प्रकार से किसी माली का अगर पूरा बाग उजड़ जाए तो उस बाग का माली बाग उजड़ गया तो कैसी उसकी मनोदशा होगी, उस माँ और उस पिता पर या उस परिवार पर क्या व्यतीत हुआ होगा जिसके 3 बेटे, तीनों, मैं फिर से कह रहा हूँ, वासुदेव हरि उस समय मात्र 20 साल के थे जब उनको फांसी हुई, बालकृष्ण हरि मात्र 26 साल के थे, दामोदर मात्र 29 साल के थे, और लगभग इसी आयु के एक चौथे महादेव रानाडे, वो भी इनके साथ उनको फांसी हो गई। यानी इतना बड़ा इतिहास का एक जिसको पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई, जिसकी न्यूज दुनिया के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपा, उनका जीवन परिचय भी छपा, उनको वकील बताया गया, उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो अंग्रेजों से घृणा करते थे और अंग्रेजों से बदला प्रतिशोध की भावना उनके मन में रहती थी। ऐसे बहुत सारे वर्णन उनके बारे में अंग्रेजों ने छापे। लेकिन एक तो बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब दामोदर फांसी के फंदे पर जा रहे थे, कैसी जीवटता होगी, उनके पास उस समय गीता थी जो तिलक जी ने उनको दी थी। वो गीता के साथ ही उन्होंने फांसी के फंदे को अंतिम इच्छा के रूप में गीता रख करके फांसी के फंदे को चूमा, और जब वो फांसी के फंदे को चूम रहे थे तब उस समय उनका वाक्य क्या था कि तुम मेरे इस शरीर को फांसी के फंदे को चढ़ा सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो विचार और आत्मा है उसको आप नहीं मार सकते, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 16 साल के बाद फिर से मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी आप देखिए, केवल उग्रता नहीं, केवल आक्रोश नहीं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को, गीता को मानकर, पुनर्जन्म के विश्वास को मानकर फिर से मैं 16 साल बाद, यानी मैं, आप जैसे इस शरीर को मारेंगे, ये आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, वो शरीर फिर से तैयार होगा, और जब मैं 16 साल का नौजवान हूँ फिर से मैं अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी कैसे लोग थे, कैसा जुनून था देश के बारे में। आज अगर किसी को छोटा सा कोई काम नहीं मिलता है तो वो पूरे देश को मतलब पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करता है, लेकिन वो एक मन में एक भाव भी नहीं आया कि मेरा कोई जयकारा बोलेगा क्या, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरा परिवार का क्या होगा। लेकिन फिर कह रहे हैं कि 16 साल बाद फिर से मैं इसी परिस्थिति में आकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ूं। यानी कितना विश्वास है, कितना अपने भारत के लिए कमिटमेंट और एक तरह से कन्विक्शन लेवल उनका क्या है, ये देखने लायक बात है। दुर्भाग्य से मित्रों, ऐसे क्रांतिकारियों को इस देश के वर्तमान के इतिहास लेखकों ने, इस देश की आजादी के बाद बनने वाली सरकारों ने अपनी कूटनीति के कारण से अपने कुछ लोगों को देश के सामने बड़ा करने के लिए अपने छोटे और बोने लोगों के चेहरों को, यानी गमले में हुए लोगों को बड़ा करने के लिए बरगद के लोगों को भुला दिया गया, ऐसा मैं कह सकता हूं। ऐसे इतिहास का एक पन्ना नहीं, ऐसे भारत के स्वर्ण इतिहास के अनेकों पन्ने हैं। ओएनजीसी फाउंडेशन जो हर इतिहास के पन्ने को लाना चाहते हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ऐसे हर एपिसोड में एक नया पन्ना, एक नया व्यक्ति, आज के पन्ने पर तो 3 नहीं 4 भारत के ऐसे स्वाधीनता के स्वतंत्रता सेनानियों के मैंने बारे में बताया। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर विनायक चापेकर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। 8 मई 1899 को उनके छोटे भाई बालकृष्ण को 26 वर्ष की उम्र में चढ़ा दिया गया। 10 मई 1899 को महादेव रानाडे को फांसी हो गई, और 12 मई 1899 को मात्र 20 साल की उम्र में, और ये 20 साल का वासुदेव क्या करके गया, जिन 2 लोगों ने मुखबरी की थी उन दोनों लोगों को भी मौत के घाट उतार कर गया। जिस अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने दामोदर को टॉर्चर किया था, 3 डिग्री किया था, उसको भी मारने का प्रयास किया। ये सारे प्रयास किए, यानी उस समय उनको जो अंग्रेज अधिकारी था नौकरी का लालच देता था, परिवार को सुरक्षा का लालच देता था, संपूर्ण जीवन में बहुत कुछ कर सकते इस प्रकार का लालच देता था। 20 साल के नौजवान ने अंग्रेज अधिकारी के उस लालच को नहीं अपनाया। प्रतिशोध की ज्वाला में वासुदेव ने इस देश के गद्दारों को मारकर अपने आप को मातृभूमि के लिए मात्र 20 साल की उम्र में 12 मई 1899 को फांसी के फंदे पर वो झूल गया। अब आप सोचकर देखिए, क्या ऐसे पन्ने इन 70-75 वर्षों में अगर इस देश के युवाओं के सामने रखे जाते, ऐसे चरित्र अगर इस देश के सामने आते, तो आज भारत का नौजवान
किस प्रकार के विजन के साथ आगे बढ़ता। हमें तो किसी ने गा करके सुना दिया कि हमको आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल मिल गई। हमको तो किसी ने खड़े होकर के, कोई जेएनयू में खड़े होकर के मांगे आजादी के नारे लगा दिए। क्या देश को, कौन सा युवा, कौन सी दिशा इस देश को देने का प्रयास। इसलिए जब एक एक इतिहास के पन्ने को उकेर रहे हैं तो अपने शरीर के रोए रोए खड़े होते हैं कि किनके कृतज्ञता के साथ, किनके बलिदान के कारण से हम सांस ले रहे हैं। कैसे कैसे नौजवान बलिदान हो गए, कैसे कैसे परिवार। वीर सावरकर के भी 3 भाइयों ने बलिदान किया, चापेकर बंधुओं ने भी तीनों ने बलिदान किया। इसलिए जब मुझे मौका लगा तो मुझे लगा कि आज इस इतिहास के पन्ने में आपको एक नहीं 4 और विशेष तौर पर 3 शेष भाइयों की कहानी सुनाने का मुझे लोभ मिला। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, केवल एक एपिसोड से काम नहीं चलेगा। जितने भी ओएनजीसी फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, जितने भी आज श्रोता है, आप सबसे मेरा आह्वान है, भारत के इतिहास में ऐसे भारत माता के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले ऐसे तेजस्वी युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जब भी मौका मिले किसी अनसंग हीरो को पढ़िए और केवल पढ़कर मत छोड़िए। सोशल मीडिया के जितने सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे अनसंग हीरोज को कम से कम, अपनी फोटो तो हम बहुत लगाते हैं, अपनी सेल्फी तो बहुत डालते हैं, इसी दिन ऐसे अनसंग हीरो के साथ कोई सेल्फी डालकर उसका जीवन परिचय भी दे देंगे। जैसे अभी मेरे किसी मित्र ने कहा, सोयल ऑफ लैंड, या अलग अलग प्रकार के संबोधन करने वाले ऐसे कितने सारे लोग हैं। वैसे भारत माता की स्वाधीनता में, उसकी मालिका में ऐसे बहुत सारे इतिहास के पन्ने स्वर्ण पृष्ठ हैं। ऐसे बलिदान की अमर गाथा है। ऐसे चापेकर बंधुओं को, जिनको शायद इस देश ने बाद में याद नहीं किया, केवल एक स्टैचू मैंने कहा कि वहां लगा है, एक कोई फिल्म भी उनके ऊपर बनी है। लेकिन अगर आज हम सब लोग प्रण करें, ऐसे चापेकर बंधुओं की इस गौरव गाथा को उन्होंने पूरे विश्व निर्माण कर दिया। जिस माँ की कोख सूनी हो गई, जिस माँ का बाग उजड़ गया, जिन 3 बहनों ने अपने पतियों का बलिदान कर दिया और आजादी के बाद भी वो जीवित थे, लेकिन इस देश और समाज ने कभी उस परिवार के बारे में नहीं सोचा। वो तो नहीं चाहते थे कि हमको कोई याद करे, लेकिन इस कृतज्ञ राष्ट्र को तो अपने इन पूर्वजों को याद करना चाहिए। इसलिए केवल आजादी के अमृत महोत्सव पर उनको याद करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया, हम अपना जीवन इस देश के लिए दे सकते हैं। ऐसा विचार करते हुए हमारे आज के लिए या हमारे कल के लिए उन्होंने अपना आज दिया, हम अपना आज आने वाले कल के लिए कैसे दे सकते हैं। इसलिए स्वाधीनता के 75 वर्ष में आइए अमृत काल के 2047 के भारत के बारे में कुछ चित्र अपनी आंखों के सामने उकेरे। जिन लोगों ने 1947 से पहले अलग अलग प्रकार से इस देश को गढ़ने में, आजाद कराने में, स्वाधीन करने में अपने जीवन का सब कुछ लगाया, हम सब लोग जो इस देश से लिया है, हम सब लोग आने वाले 25 वर्ष हमको ये भारत कैसा चाहिए, हम किस प्रकार के भारत में रहना चाहते हैं, इस भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः प्रस्थापित कैसे किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से भारत की बात को कहा जाए, समाज जीवन में किस प्रकार के विमर्श को खड़ा किया जाए, इस देश के विश्वविद्यालयों में किस प्रकार का युवा खड़ा हो, उन्हें एक वैश्विक भारत, विश्व गुरु तो हम हैं ही, लेकिन एक ग्रेट महान भारत कैसे हम बनाएं, उसको लेकर के पर्यावरण का विषय है, नक्सलवाद का विषय है, अर्बन नक्सल का विषय है, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का विषय है। ऐसे तमाम भारत के स्वाभिमान के विषयों को हम इस आजादी के महत्वपूर्ण कालखंड में, अमृत काल के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने में हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसके बारे में अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि आज चापेकर बंधुओं के इस अमर बलिदान के लिए हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं अपने जीवन में आने वाले 25 वर्ष मेरे सामने भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष का कैसा भारत का चित्र मैं देखना चाहता हूँ, और उस चित्र में अपना स्केच उठाकर मैं कौन सा कलर भरना चाहता हूँ, वैसा कलर भरने के लिए अगर हम तैयार होंगे तो मुझे लगता है एक माँ के 3 बेटों का बलिदान, जो 18 अप्रैल 1898, 8 मई 1898 और 12 मई 1899 को दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर का हुआ, इन तीनों बंधुओं के बलिदान की अमर गाथा हम सबको प्रेरणा दे। हम सब कृतज्ञता के साथ ऐसे राष्ट्र भक्तों को, सर्वस्व बलिदान करने वालों के प्रति जो स्वतंत्रता हमको देकर गए, इस स्वाधीनता के पावन पर्व पर ऐसे अपने इतिहास के पन्नों को उकेरें।
इतिहास के पन्नों को पढ़ें, एक अनुभव और अनुभूति लेकर मेरा जीवन, उन्होंने देश के लिए जीवन दिया, मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, इस प्रकार का भाव, क्योंकि आज देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और ऐसे ये अनसंग हीरोज, ऐसे हमारे जो भारत माँ के ऐसे वीर सपूत है, उनका जीवन हमारे लिए गाथा है, यही हमारे लिए रामायण है, ये हमारे लिए महाभारत है, यही हमारे लिए जीवन का सार है। आइए ऐसे तमाम अनसंग हीरोज को हम भी अपने आसपास देखें और आगे बढ़ें, प्रेरणा लें और वर्तमान भारत को अपने साथ जीते हुए भविष्य के भारत का सपना लेते हुए हम आप सब लोग इतना ही विश्वास करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज ओएनजीसी फाउंडेशन ने एक अवसर मुझे दिया, मैंने प्रयास किया आपके सामने एक ऐसे अनसंग हीरोज जानते होंगे, लेकिन उनका कार्य क्या था, बलिदान कैसा था, उसके बाद उनको इतिहास में कहाँ गायब कर दिया गया, वो कौन लोग थे जिन्होंने उस इतिहास को हमारे सामने नहीं लाने दिया गया। ऐसे तमाम प्रश्न शायद आपके मन में आए होंगे और अगर ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम की सफलता यही है कि आपके मन में ऐसे प्रश्न खड़े हों, हम भी ऐसे अनसंग हीरोज को ढूंढें, उनकी गाथा को कहें, प्रेरणा लें और 2047 का भारत, 25 वर्ष मेरा जीवन देश के लिए क्या कर सकता है, इसका विचार हम करें। और राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इस भाव के साथ हम अपने भारत को आगे बढ़ाएंगे। निश्चय ही एक विश्व विजयी और एक महान देश भारत हम सबकी आंखों में होगा। याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों के सामने हम एक पुनः विश्व गुरु भारत को देखने की ओर आगे बढ़ेंगे। 75 वर्ष के अमृत काल से अमृत वेला से हम अभी 100 वर्ष की भारत की स्वाधीनता के अमृत काल की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अगले 25 वर्ष भारत के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम पुनः वसुदेव कुटुंबकम के और सर्वे भवन्तु सुखिनः के महामंत्र को लेकर भारत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत के आगे बढ़ने से ही विश्व की शांति की नियति यहाँ से तय होती है। हम उसी सोपन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओएनजीसी फाउंडेशन की पूरी टीम को एक बार पुनः हृदय से आभार, आपने आज इतना विषय रखने का मुझे अवसर दिया। समय की सीमा है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन भारत की स्वाधीनता में ऐसे अनगणित इतिहास के पन्नों को हम सहेजें, बटोरें, उनको साक्षात्कार करें, उनके ऊपर लेखन करें, एब्स्ट्रैक्ट लिखें, पेपर लिखें, रिसर्च करें। और इसलिए वर्तमान में जो हमारे सामने भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, हम जानते थे, लेकिन अब देश जय अनुसंधान की ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है ओएनजीसी भी एक बहुत बड़ा अनुसंधान करता है, जो हम आप जैसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, जहाँ करके हम एक अनुसंधान कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सामाजिक अनुभूति के बारे में, अपनी संवेदनाओं के बारे में और एक नागरिक बनने के और अग्रसर होने के बारे में यह अनुसंधान चलता रहे। आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप सोएं तो 2 लोगों को जरूर याद करें जिसके कारण से हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं, ऐसे देश का जवान, और जिसके कारण से हम जिंदा हैं, ऐसा देश का किसान। तो हम आज के भारत को गढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत। श्रीनिवास जी, आपने कम समय में इतना सब कुछ हमें बताया। जैसे आप कह रहे हैं समय की पाबंदी थी, फिर भी हमने चापिकर ब्रदर्स बंधुओं के बारे में, 3 भाइयों की कहानी आपके माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ समझा। मैं ये भी समझती हूँ कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं आज, वो जरूर इस कहानी को पहली बार सुन रहे होंगे, या जिन्होंने इस नाम को भी सुना होगा तो वो इतने आसानी से नहीं समझा होगा कि कितनी कठिनाई के साथ क्रांतिकारियों ने कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया। इतना सरल नहीं होता है कि कैसे अपनी बात को रखें। जैसे आपने ये भी बात कही थी कि आज के जवान, नौजवान जैसे हम हैं, आज की युवा पीढ़ी, आज भी कोई कठिनाई होती है तो थोड़े समय के बाद अपने आप को भूल जाते हैं, उस कारण को भूल जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्रांति लाना, देश को बदलना इतना आसान नहीं होता। इस माध्यम से, इस कहानी से हम ये भी आपसे प्रेरणा लेते हुए, इन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए ये सीख सकते हैं कि जिस सेक्टर में हम हैं, जिस सोशल सेक्टर में हैं और जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते रहना है और कठिनाई आएगी और इसी तरह सामना करना है। और जैसे कम उम्र में उन्होंने सारी अपनी आगे की सोच को बदला, लोगों की सोच को बदला और ये भी जाना कि देश को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और वो बड़ा कदम उन्होंने अपनी जिंदगी देके उठाया। तो इन चापिकर बंधुओं को हम सब एक बार नमन करते हैं, हम एक बार शुक्रिया करते हैं
कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जिंदगी दी जिस मुकाम में हम हैं। जिस इतिहास के पन्ने को हम नहीं समझ पाए, ओएनजीसी इस सेशन के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा, इतिहास के पन्नों के द्वारा सेशन में हम जरूर आजादी के अमृत महोत्सव में और इस तरह के अपने क्रांति वीरों को और लोगों को याद करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे सीख भी लेंगे कि कैसे हम अपने और जिंदगी को और आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौजवान और इस देश को आगे तैयार करें। तो इस सेशन को यहाँ रैप करते हुए आई वुड रिक्वेस्ट प्रियदर्शनी, ओवर टू यू फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। यस मैम। सर, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें चापेकर बंधुओं के बारे में बहुत सी कहानियां बताई, बहुत सी बातें बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आशा करते हैं कि आगे भी इतिहास के ऐसे अनजाने पन्नों के बारे में हमें पता चलता रहेगा और आप भी हमारे साथ जुड़ के एक न एक दिन जरूर मतलब और भी बातें बताएंगे, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा होता है और हमारे पास आज समय की पाबंदी थी, पर आपने बहुत ही अच्छे से हमें आज की कहानी बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Ma'am, thank you so much for moderating today's session. And thank you everyone for joining us today for this session. Have a great evening ahead. Thank you. Namaskar. Thank you. सभी को नमस्कार। नमस्ते। प्रियांक नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।